For many years, he had lived in the great forests of the Himalayas. He had lived and prayed and meditated, forever seeking the grace of divinity. For many years he had lived on the lonely banks of the Narmada. He had lived, prayed and meditated, forever seeking the ultimate proximity of Lord Dattatreya, the Supreme Guru. Finally, the serene shadows of Mount Girnar beckoned to him. And so 33 years ago, Swami Punitacharyaji came and settled in the foothills of the holy mountain Girnar. It is here, Girnar Sadhana Ashram, that Swami Punitacharyaji personifies the mystic mantra gifted to him by Lord Dattatreya. The mantra is Hari Om Tat Sat Jai Guru Datta. Swami Punitacharyaji is affectionately known to all as Bapu. In this pristine ashram, Bapu creates and sustains an atmosphere pervaded by the supreme mantra Hari Om Tat Sat Jai Guru Datta. The mantra is a vehicle for meditation. Its continuous chanting carries the mind through a process of purification, cleansing it of distractions and tensions, and bringing us finally to a state of eternal peace and joy, a state of oneness and indivisibility, radiating with strength and bliss. The chanting of this mantra brings spiritual energy to all devotees, regardless of religion, caste or creed. The mantra is an initiation into a universal life of peace, purity and piety. All things living are in communion with Bapu. These are typical scenes at the ashram. Bapu in the company of animals, cattle and birds, feeding them, playing with them and amusing them. This is at once deep respect and deep care for life. That is the central concern of all the great saints who have guided mankind. The concern is to elevate life to the highest level of spiritual consciousness. Bapu is one such saint, and he touches life everywhere around him. This is the mantra which was gifted to Bapu by Lord Datta. And Bapu in turn gives it away for humanity, regardless of caste, creed, religion or country. हाँ साहब, सहज योग जो है पुस्तकों में, शास्त्रों में और कुछ वक्ताओं ने बहुत कुछ सहज योग पर लिखा है और बोला है, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मुझे जब सदगुरु दत्तात्रेय की कृपा हुई मिले, गोरखनाथ जी में सिंधनाथ जी वगैरह मिले हैं, उस संदर्भ में जो कुछ हमने सुना और जाना है वो बता रहा हूँ कि सहज योग जो है सब योगों से उत्तम योग है। सहज योग अपने आप होता है। सहज योग के विषय में हम बोलें, लिखें, ठीक है, थोड़ी बैकग्राउंड भूमिका बतानी चाहिए। सहज योग एक ऐसा योग है जो कृपा साध्य है,
सिद्ध महापुरुषों की जब कृपा होती है तो सहज योग अपने आप होता है। सहज योग में हठ योग, राज योग, लय योग, क्रिया योग, अंतर योग अपने आप ही होता है। सहज योग सभी शास्त्रों में बहुत ही उत्तम योग है। आइए, पढ़ने से मात्र पुस्तक के अध्ययन से नहीं होता है, ये सिद्ध परंपरा से गुथा हुआ है। ऐसे महापुरुष अगर कृपा करें तो सहज योग बहुत सरलता से और बहुत आसानी से होता है और साधकों को उसमें संतोष होता है। सहज योग जो है, अगर कोई महापुरुष के यहाँ आप जाएं योग करने के लिए और कृपा करें, तो अगर आप हठ योगी होंगे, हठ योग से सहज योग में आए होंगे, तो हठ योग की क्रियाएं भी आपके अंदर होंगी। जो हठ योग किए वो बाकी रह गई होगी, वो अपने आप होगी। राज योग से आप आ रहे हैं तो राज योग में जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक तो ठीक है, वो अपने सहज योग मतलब कृपा, गुरु की कृपा उसको देख लेती है, बाँच लेती है और आपको फिर राज योग में जो बाकी है उस योग को पूरा करते हुए फिर आगे ले जाएगी। सहज योग में कोई आसन, प्राणायाम, मुद्रा स्वयं नहीं करना होता है, उसमें अपने ही आप होता है। साधकों को प्रेरणा होती है कि कोई प्रेशर कर रहा है कि तुम प्राणायाम करो, तुम ये मुद्रा करो, ये आसन करो। कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी को कोई मुद्रा क्रिया नहीं होती है, अमुक अमुक आसन होते हैं सहज योग में, और किसी किसी को यूं ही शांति से सब अनुभूतियां होती हैं। तो सहज योग सिद्ध परंपरा से गुथी हुई एक पद्धति है जो कि कृपा साध्य है और उनकी कृपा से ही होता है और उसके बाद साधक अपने आप आगे बढ़ता है। क्या सहज ध्यान इसी का कोई अंग है? साहब, सहज योग और सहज ध्यान, योग जो है, योग का मतलब जोड़ना। अष्टांग योग है तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो आप जो कुछ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार वगैरह करते हैं वो आप सोचते हैं कि मैं यम का पालन करूं, अहिंसा, सत्यास्तेय, परिचर्या, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, इस प्रणिधानानि, ये यम नियम है। तो ये सब करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं, नियम का पालन करते हैं, कर्म कांड करते हैं, आचरण करते हैं। लेकिन अगर कोई सिद्ध पुरुष मिले, अगर आपको ध्यान करावें, तो ये सहज ध्यान में ये सहज योग अपने आप होता है। सहज योग का मतलब है कि बगैर कुछ किए ही अपने आप सब क्रियाएं आपके अंदर होंगे। तो सहज ध्यान में आप जब कोई महापुरुष इस प्रकार के उच्च कोटि के हों, जो शक्तिपात कर सकते हों, जो आपके विषय में बांट सकते हों, जान सकते हों, तो वो जब कृपा करते हैं, ध्यान सहज ध्यान होता है। तो सहज ध्यान में सारे योग अपने आप होते हैं। आप देखेंगे तो कोई रो रहा है सहज ध्यान में, रोने का मतलब है कि आपके अंदर कुछ भी बैठी हुई जो तकलीफ है, जो कभी आप व्यक्त नहीं किए हैं, अंदर अंदर पड़ी हुई है, जिससे आप कभी डिस्टर्ब भी होते हैं, जिससे आपको परेशानियां भी होती है सोच सोच करके, वो विचारों का, कार्बन डाइऑक्साइड, थिंकिंग का, पॉल्यूशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव जो अंदर पड़ा है, तो सहज योग में बैठेंगे तो कभी रो करके बाहर निकाल दिया जाता है। और जब निकलता है तो उसकी थोड़ी देर के बाद फिर आपको हंसना अपने आप आता है। तो इसके विषय में सब लोग, कोई रेकी पद्धति है, कोई अलग अलग पद्धति कराते हैं कि सहज में रोना न हंसना करो, सीखो। लेकिन हमारे सहज योग में आपको करना नहीं होता है, अपने आप होगा कि आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ध्यान के अंदर, ध्यान जो है बड़ी ऊंची अवस्था है। ये ध्यान जो है सविकल्प जड़, सविकल्प निर्विकल्प, ये सभी ध्यान से ऊंची अवस्था है सहज ध्यान। सहज ध्यान में निर्विचार स्थिति में बैठेंगे आप तो शायद हो सकता है कि निर्विकल्प समाधि में हजारों वर्ष तक आप बैठे। जड़ समाधि में
आप 21 दिन तक बैठ सकते हैं। जड़ समाधि में अमुक बाई अमुक एक खड्डा होता है, उस खड्डे को माप घन फुट कितना उसमें ऑक्सीजन होगा उसको माप लिया जाता है और उसमें किसी साधक को बैठा दिया जाता है। तो 24 घंटे में उसको कितने श्वास चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, इसका घन फुट माप करके हम उस खड्डे में बैठ जाएंगे और समाधि लगा लेंगे। अगर हमको वो ऑक्सीजन 24 दिन तक खुराक होगा तो हम 21वें दिन बोल देंगे कि हमको खोल देना। 21 दिन में आप खोलेंगे तो मैं इसे स्वस्थ निकलूंगा। अगर आप 25वें दिन खोलेंगे तो मेरी डेड बॉडी होगी। उसमें जड़ समाधि में ऐसा होता है। चेतन है जो निर्विकल्प, उसमें साधक मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, चंद्रबिंदु, उत्तरकटी, हिरण्यगर, महामाया कभी सहस्रार में आकर के समाधिस्थ हो जाते हैं और हजारों वर्ष तक बैठ सकते हैं। वो बाहर भी निकलते हैं। ऐसे साधक स्थूल कहीं पड़ा है, बाहर निकलते हैं लेकिन अपने स्थूल को टच किया करते हैं सूक्ष्म से कि कोई दूसरा उसमें प्रवेश न कर जाए। अपनी सुरक्षा रखते हैं वो और उसको टचिंग किया करते हैं तो हजारों वर्ष तक बैठ सकते हैं। उनके ऊपर बर्फ जम जाए तो बर्फ जमी रहती है। जब उनको बाहर निकलना होगा तो संकल्प करेंगे, सूर्य का किरण पड़ेगा, कुछ ताप पड़ेगा, बर्फ उगड़ जाएगी, फिर अपने स्थूल में प्रवेश करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब स्थूल में आप आएंगे, उसमें जब आने के बाद इस जगत में विचरण करेंगे तो द्वैत, द्वंद्व, सुख, दुख, हानि, लाभ सुन करके भी कभी स्पर्श हो जाता है। इस समाधि से निकलने के बाद, इस ध्यान से निकलने के बाद। लेकिन सहज ध्यान ऐसा है कि ये सदगुरु दत्तात्रेय महाराज जी से इनके कृपा पात्र जो हैं वो जब सहज ध्यानी होते हैं तो सहज ध्यान का मतलब जीवन मुक्त स्थिति, मतलब उनको इतना विशद ज्ञान होता है कि उनको ये आधी व्याधि ताप उनको स्पर्श नहीं करता है। जैसे कि गर्मी हो रही है तो आप गर्मी को हटा नहीं सकते हैं, गर्मी तो आएगी, लेकिन इससे आप एसी रखते हैं और बचते हैं। आप गर्मी से ठंडे लगती है तो हीटर रखते हैं, उस गर्मी से बचते हैं। लेकिन गर्मी तो पड़ेगी ही, गर्मी हटाया नहीं जा सकता है। कोई बोले कि हमें कोई विचार बहुत हैरान करते हैं, बाहर के पॉल्यूशन भी हैरान करते हैं, सुख दुख भी हमको अनुभव होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। भाई ये तो होने को है, लेकिन गर्मी में आप काम तो करते हो उससे बच करके, ठंडी में भी जीते हो, करते हो। तो सहज ध्यान एक ऐसा ध्यान है कि जिसमें आत्मज्ञान सतत रहता है, अखंड रहता है। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम में ब्रह्मोस्मि की स्थिति, मतलब जो आप बैखरी में सुनते हैं वो स्थिति में आ जाता है। लिखना और बोलना, सुनना और स्थिति में लाना ये उत्तम है, वो सरल है। स्थिति प्राप्त करनी कठिन है। तो वो सदगुरु की कृपा हो, सतत मनन चिंतन निधिध्यासन हो तो स्थिति आती है। स्थिति का मतलब है कि 5 तत्व का बना हुआ स्थूल पिंड, इतने तत्वों का बना हुआ स्थूल पिंड, इसमें अंतःकरण, चतुष्टय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, उस इंद्रियां, मन, इन सब का साक्षी आत्मा है। वो आत्मा अंदर बैठा हुआ है, वो मैं हूं। साक्षी बन करके इंद्रियों द्वारा जो कुछ कर्म हो रहे हैं मैं देख रहा हूं। करने वाला मैं नहीं हूं, मैं मात्र साक्षी हूं। अपने आप हो रहा है और मैं सबका साक्षी हूं। उसमें कर्तापना का अभिमान नहीं आता है, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं होता है। सहज में सब हो रहा है, मैं देख रहा हूं। तो वो जब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म आप देखेंगे, मतलब असंग लिप्त भाव से सभी कर्मों को देखते हुए आत्मज्ञान में हमेशा स्थित रहेंगे, वो कर्म आपको लिपायमान नहीं होता, बंधन करता नहीं होता है, और वो मुक्तावस्था है।
तो जिंदे जिंदे शरीर धारण करके इस जगत में रहते हुए सब कुछ करते हुए भी आपका प्रारब्ध जो है, जो क्रियमाण कर्म है वो संचित नहीं होगा, और संचित नहीं होगा तो प्रारब्ध नहीं बनेगा। लेकिन जो प्रारब्ध है उसको हम सरलता से भोगते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो सहज योग जो है उसी का उत्तम आगे का पार्ट जो है वो सहज ध्यान है। तो जत्र जत्र मना जाती तत्र तत्र समाधयः। सहज ध्यान जो है, सहज समाधि है, वो दुर्लभा सहज अवस्था। किसी किसी करोड़ों में, लाखों में किसी महापुरुष को सदगुरु की कृपा हो तो ये समाधि मिलती है, ध्यान मिलता है। तो सहज ध्यान बिल्कुल निर्दोष, सुखदायी, सहज, कोई विक्षेप नहीं, आवरण नहीं, और सहज में हम चलते जा रहे हैं। तो सहज ध्यान बहुत उत्तम ध्यान है। सहज योग और सहज ध्यान एक ही दो पार्ट है। आपके कहने का अर्थ है कि सहज ध्यान की अवस्था साधारण ध्यान की अवस्था से बहुत उच्च होती। सहज ध्यान साधारण ध्यान से बड़ी ऊंची स्थिति है। और सहज ध्यान जो है पहले हम लोग जब कराते हैं तो सिद्धों की पद्धति होती है, जिसको जैसा मार्गदर्शन मिला हो इस प्रकार से सहज ध्यान कराते हैं। और आप नेत्र बंद करके बैठें, अगर आपकी इच्छा हो तो खुली आंखें बैठें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खुली आंख बैठे तो आपकी दृष्टि जब तक स्थिर रहे तब तक खुली आंख रखे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपके पलक पड़ने लगे तो आंख बंद कर लेना चाहिए। तो आंख इसलिए कि दृष्टि की स्थिरता जो है मन की स्थिरता है। कोई लोग त्राटक करते हैं इसीलिए कि मन स्थिर रहे, विचार स्थिर रहे। तो जब तक दृष्टि स्थिर है तब तक जो है आप खुली आंख रखिए, नहीं तो आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके अपने श्वास पर दृष्टि रखिए और अपने विचारों को देखते हुए बैठे रहिए। पूज्य श्री, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि ध्यान से प्रतिदिन की जीवनचर्या में क्या अंतर आता है? साहब मैं तो ये बताऊंगा आप लोगों को कि इस जगत में अच्छी तरह जीना हो, रहना हो, काम करना हो तो योग कर्म से कौशलम। कर्म की कौशल्यता जो है वही जिंदगी है। जिसको अच्छी तरह जीना हो उसको योग ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मैं बोल गया वो स्थिति आपकी आएगी। आपके सामने दुख, द्वंद, विक्षेप, आवरण, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जो ये परिस्थितियां जो खड़ी होगी जिसमें आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, चलित हो जाता है, उनके सामने अगर ध्यान करते रहेंगे तो एक पर्दा बंद करके आपकी सुरक्षा करेगा। जैसे पानी पड़ रहा है, आप छतरी रखे हुए हैं, रेन कोट पहने हुए हैं, तो सहज ध्यान जो है आपको दुख, द्वैत, द्वंद से बचाता है। ये विचार आपको जो आकर बारंबार स्पर्श करते हैं उससे उनको हटाता है। जैसे पानी फिल्टर करने के लिए अब दवा डालते हैं तो पानी फिल्टर हो जाता है, ऐसे ही सहज ध्यान जो है आपके अंदर बैठ करके सारों पोल्यूशन को, दुख को, द्वंद को दूर किया करेगा, आपको स्वस्थ रखेगा। और स्वस्थ रह करके उपस्थित जो कर्म है, उपस्थित समस्याएं हैं, उनको समाधान के लिए बल और शक्ति देगा, लड़ने की शक्ति देगा, उसमें आपको आत्मबल बढ़ाएगा और स्वस्थ रखेगा। ध्यान करने से अनेक प्रकार की व्याधियां, बीमारियां स्थूल में प्रवेश कर जाती हैं, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, मानसिक तनाव बोलते हैं, मन की स्थिरता बोलते हैं। तो व्यक्ति जो है अलग अलग समस्याएं आती हैं, वो सॉल्व नहीं हुई, उनका समाधान नहीं हुआ तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, तो उसमें आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। तो ये ध्यान करने से मानसिक तनाव हट जाएगा, अब डिप्रेशन आपको नहीं होगा।
अस्वस्थता नहीं आएगी, आप खिले खिले खुश रहेंगे, समस्या को देखते हुए समाधान की तरफ आप गतिशील रहेंगे। हाई बीपी हो, इसे मिट जाता है। आपको ब्लड शुगर है तो आप पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा थिंकिंग करने से, बहुत विचार करने से, बहुत सोचने से ब्लड शुगर बढ़ता है, ये हो जाता है। लेकिन ये सहज ध्यान है, वो अंदर घुस करके जो विचार आपको अस्वस्थ बना रहा है, जो विचार आपको ब्लड शुगर पैदा करा दिया है, अन्य बीमारियां पैदा करा दिया है, ये ध्यान जाकर अंदर सब शुद्ध करेगा और सब व्याधियों को हटाएगा। ध्यानी को अगर मापें आप तो उसका हाई बीपी नहीं रहेगा, धीरे धीरे ब्लड शुगर चला जाएगा, मानसिक तनाव चला जाएगा, स्वस्थता अच्छी रहेगी। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि रोज ध्यान करके आप अपने व्यवसायिक काम में लगें तो आपका धंधा व्यापार में भी मन लगेगा। आप पढ़ने जाते हैं, हमारे यहाँ शिविर होते विद्यार्थियों की, तो इतने स्वस्थ रहते हैं कि जो पढ़ते हैं तुरंत याद ही रह जाता है। विद्यार्थियों के लिए सहज ध्यान बहुत अच्छा है। वो ध्यान करके और बाँचने जाएंगे, एक वक्त पढ़ेंगे तो बाँचने में याद ही रहेगी। सहज ध्यान योगियों का विचार इतना शुद्ध होता है कि उनको इतना विशुद्ध ज्ञान खिलता है कि उनको इतना समझ में आता है कि मैं क्यों आया हूँ, ये शरीर क्यों मिला है, मैं हमको करना क्या है। तो माता पिता के प्रति उनको अच्छा फर्ज अदा करने का मन करता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, भावना उनके अंदर जगती है। शिष्टता आती है, सदाचार आता है, विवेक आता है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे व्यवहार करना, ये सब कला उनको आती है। विद्यार्थी जीवन में भी बहुत उत्तम है। शिक्षकों भी को भी करना चाहिए। शिक्षक खुद स्वस्थ हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमको विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इनके प्रति आत्मीय भाव कैसा होना चाहिए, इनके विकास में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर की जागृति होती है। तो इसमें ज्ञान का आदान प्रदान दोनों का विकास बहुत अच्छा होता है, विद्यार्थी के लिए अच्छा है। और जो आत्मज्ञानी हों, जो ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहते हों, उनका मार्ग प्रशस्त होता है। बगैर मेहनत किए ही आपका रास्ता मिलते जाता है, आगे आप बढ़ते जाते हैं। जो संसार के बीच में हैं उनका भी काम होता है। अगर ध्यान में बैठे और कहीं आप संकल्प करें कि हमारा ये काम नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, प्रार्थना करें, वो काम सरलता से होने लगता है, क्योंकि संकल्प शक्ति बढ़ती है, अंदर शक्ति का विकास होता है। तो आप जिस क्षेत्र में उसका संकल्प करें उसमें सफलता मिलती है। लेकिन सहज ध्यान जो है, आप अपने विचारों को भौतिक जगत में ले जाएंगे तो आपका साथ देगा, लेकिन आपको खींच खींच करके लक्ष्य की तरफ ज्यादा ले जाएगा। इधर रहते हुए भी आपका सब काम पूरा कराते हुए ज्यादा आपका मन शुद्ध बना बना करके और लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। स्थूल मन, सूक्ष्म मन, अधिमन और अतिमन, मन की चार अवस्थाएं जो हैं उसको शुद्ध बना करके और ऐसी स्थिति में रख देगा कि बस व्यक्ति को परम आनंद, परम शांति की अनुभूति है। तो सहज ध्यान से आप अगर कोई ऐसा महापुरुष का मार्गदर्शन हो तो सहज ध्यान आप करेंगे तो मानसिक शांति आपको बहुत मिलेगी। आप बैठ कर देखेंगे, इसमें दत्तात्रेय महाराज ने, सभी सिद्धों ने हरिओम तस्य जय गुरुदत्त मंत्र दिया है कि अगर कोई नॉन स्टॉप 10-15 मिनट हरिओम तस्य जय गुरुदत्त, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त बोल करके और बैठे तो उसको तुरंत मानसिक शांति मिलती है। उसके भगवान दिखते हैं। इसमें मैंने बोला है आप लोगों को कि इसमें गुरु बदलने की जरूरत नहीं। आप जिसको गुरु बनाए हों बनाए रखें, आपका जो पंथ संप्रदाय है उसको रखें। आप चाहे जैन हो, स्वामीनारायण हो, वैष्णव हो, शैव हो, क्रिश्चियन हो, इस्लामी हो, नो प्रॉब्लम। ध्यान जो है वो आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है। वहाँ पंथ की बाउंड्री नहीं है, वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ मानव मात्र का कल्याण है, मानव सेवा है। जो शांति जो है ना, शांति में कोई नाम नहीं लिखा होता है कि वैष्णव की शांति कि शैव की है कि जैन की है कि बुद्ध की है। शांति एक होती है। मानसिक शांति मिली, सब काम हो गया। दवा के तरह से है।
और ये सदगुरु तत्व मैं बता रहा हूँ। यहाँ ऐसे सदगुरु तत्व की मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि कोई सारे 3 लोक 14 भुवन में आकाश के तरह से जो अखंड व्याप्त है, वो चैतन्य शक्ति जो अखंड व्याप्त है, जो सारे ब्रह्मांड को अपने कवर की हुई है। जैसे एक ही सूर्य है और सारे वर्ल्ड को प्रकाश दे रहा है, एक ही चंद्र है, सारी दुनिया को शीतलता दे रहा है। पवन है, सारी दुनिया को पवन ऑक्सीजन दे रहा है, जिंदगी जीवन दे रहा है। पानी बरसता है, सारी दुनिया के लिए बरसता है। इन तत्वों पर कोई संप्रदाय का नाम नहीं है। इसी प्रकार से जो अखंड व्यापक चैतन्य तत्व है, गुरु तत्व है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो किसी बाउंड्री में, किसी पंथ में नहीं है। वो सारी दुनिया के जीव मात्र को, प्राणी मात्र को उनका कल्याण करता है। लेकिन मानव को ज्ञान है, इसलिए मानव को जो है बोध दे करके सही दिशा बताता है। इसलिए आप दुनिया में कहीं भी बसते हों, चाहे भारत में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, जर्मनी हो, स्वर्ग में हो कि पाताल में हो, जहाँ भी इस मंत्र को करके ध्यान में बैठेंगे, आपको ध्यान लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी, आपके गुरु और आपके भगवान दिखेंगे। तो इसके लिए मैं भारत में तो मैं कराता हूँ, और जी देश प्रदेश से जो जहाँ से आते हैं उनको मार्गदर्शन देता हूँ। तो लंदन में चंद्रकांत शुक्ला को खूब आशीर्वाद दिया है कि ये इस विषय के पिपासु हैं और योगासन भी कराते हैं। योगासन के साथ साथ अगर ये सहज ध्यान करावें तो सोना में सुगंध हो जाएगा, क्योंकि योगासन जो है वो स्वस्थ लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनकी बड़ी उम्र हो गई है, जिसका घुटन दिख रहा है, कमर दुख रहा है, कोई बीमारी है, व्याधि है, वो सोचते हैं कि हम तो योगासन करेंगे नहीं तो हम भगवान से वंचित रह जाएंगे, हम कैसे भगवान के पास पहुँचे। तो ये ऐसा रास्ता है कि अबाल वृद्ध, बालक हो, वृद्ध हो, जुआ हो, पढ़ा हो कि अनपढ़ हो, ऑफिसर हो कि मिनिस्टर हो, प्रधान हो, जो भी इसको बोलकर बैठेगा, वो गधेड़ा चारने वाला, चलाने वाला, अथवा तो घेटा बकरा चराने वालों को भी ध्यान लगेगा, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। लेकिन उसको समझ में आवे कि न आवे ये बात अलग है। लेकिन इसको बोल करके जिसको आप ध्यान में बैठाएंगे, मानसिक शांति मिलेगी, उसको ध्यान लगेगा, समझाना आपका काम है। इसलिए यहाँ लंदन में चंद्रकांत शुक्ला को मैंने आशीर्वाद दिया है। बड़े हमारे सुपात्र प्रिय पात्र हैं, उन पर सदगुरु की कृपा भी बरसी है। उनको बोला है कि आप जहाँ भी जाओ ध्यान लगाना। और इस मंत्र में इतनी ताकत है, अगर आप लोग पूछें तो अगर कोई दूरदर्शन वाले इस मंत्र को रिले करें और जाहिरात करें कि जिसको ध्यान में, योग में रस हो, तो आप लोग इस मंत्र को करके और 15-20 मिनट ध्यान में बैठ करके 4-5 दिन के बाद दूरदर्शन को लिखो, तो जितने जिज्ञासु होंगे एक साथ में 1 करोड़ बैठेंगे तो 1 करोड़ को ध्यान लगेगा और सबको मानसिक शांति मिलेगी। तो मैं जो बोलता हूँ उसको टेस्ट करके देखना चाहिए। आप लोग पहले अपने घर में बैठे और सभी संप्रदाय के लोग जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, और सब लोग बैठकर अपने घर में पहले टेस्ट करें। अगर सही है तो दूसरों को ही बतावें। मृखा न हो देव ऋषि वाणी, ऋषियों महर्षियों की वाणी जो है आशीर्वाद है, उसमें शक्ति है, ताकत है, जिससे कि आपके संविधान में, कायदा में, कानून में शक्ति है। आपने उसमें पावर भरा हुआ है कि ये दफा लागू होने पर आजीवन कैद होगा, इस दफा में मृत्यु दंड होगा, इस दफा में अमुक पनिशमेंट होगा। वैसे ही हमारे इस मंत्र में ऐसी शक्ति भरी हुई है कि दुनिया का कोई भी मानवी इस मंत्र को करके ध्यान में बैठेगा, उसको ध्यान लगेगा, शांति मिलेगी, उसको आनंद आएगा। तो इससे जो है भव व्याधि का नाश होता है। इस जगत में रहते हुए भी आप लक्ष्य प्राप्त कर लें, इतनी ताकत इस सहज ध्यान में है। इसमें MA हो, BA हो, PhD हो, पढ़ा लिखा हो, कोई जरूरत नहीं है। मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मुझे मन की निर्मलता, निश्चलता, निष्कपटता ही चाहिए। शेवरी कहाँ पढ़ी रही, जलाराम बप्पा कहाँ PhD हुए रहे, कबीर दास जी कहाँ डिग्री लिए रहे, लेकिन लोग उन पर PhD कर रहे हैं आजकल, उन पर थीसिस लिख रहे हैं।
तो जिन पर ईश्वर कृपा कर देता है वो वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। इसलिए सहज ध्यान बहुत अच्छा है। कृपा करके ये बताएं कि ये मंत्र की धुन अकेले बैठ के करनी चाहिए या समूह में बैठ के करनी चाहिए? साहब ऐसा है कि अगर एकला बैठकर आप अगर ध्यान करेंगे तो भी आपको ध्यान लगेगा, समूह में बैठकर करेंगे तो सभी लोगों को लगेगा। लेकिन समूह में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा होती है और उसका आंदोलन ज़्यादा पैदा होता है, तो जितने भी होंगे सबको ध्यान लगता है। अगर कोई बोलता हो तो ठीक है, खाली कोई नहीं बोलेगा और खाली सुनेगा तो भी उसको ध्यान लगेगा। कभी आप लोग अभ्यास करके देख लेना, कभी टेस्ट करना, खाली सुनोगे तो भी आपको ध्यान लगेगा। लेकिन अगर हम मूंगे तो नहीं है, वाणी तो है। अब दुनिया भर के काम के लिए हम बोलते हैं तो भगवान का नाम लेने में क्यों न उच्चार करें। तो नाम लेने से अंदर बाहर की पवित्रता होती है और बोलकर ध्यान करने से बहुत अच्छा होता है। बोला ना कि अगर जितने ज़्यादा आदमी बोलेंगे उतने वायस इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा होगी तो ज़्यादा आदमी को ध्यान लगेगा। आप यहाँ धुन कर रहे हैं और साइड में दूर में बैठा हुआ कोई मकान में बैठा हो, वो सुनेगा तो उसको भी ध्यान लगेगा। मैं खतरा करके अभ्यास करके बता रहा हूँ। क्या ध्यान करने के लिए समय और स्थान निश्चित होना आवश्यक है या कहीं भी बैठकर किया जा सकता है? साहब ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप लोग जानते भी हैं कि योगासन और ध्यान करना हो तो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, खाली पेट हो और सुबह का समय हो तो बड़ा अच्छा है। क्योंकि सुबह जो है साइंस और विज्ञान भी बोलता है कि जिस प्रकार से बादल के समय में, बरसात के समय में बादल होता है, झाकर होता है और जिससे गाड़ी चलाने में दिखता नहीं है, लगता है कि धुआं है, लेकिन वो बादल जैसा होता है वो सुबह में, मॉर्निंग में। तो हम गाड़ी में लाइट करके चलते हैं। तो हमारा विज्ञान बोलता है कि 12 महीने बादल हो कि न हो, हमारा जो शुद्ध सात्विक ज्ञान है, संतों का आशीर्वाद है, उसका एक जो है पड़ होता है, वो जमीन से 20-25 फुट दूरी तक भरा रहता है। और जब जो सूरज उगते हैं वो बिखरता है। तो सिद्ध लोग, संत लोग जो अपना आशीर्वाद फेंकते हैं, देते हैं, वो जमीन से अमुक मॉर्निंग में भरा रहता है। क्योंकि पशु पक्षी भी सोते रहते हैं और वृक्ष जो है अपना प्योर ऑक्सीजन छोड़ते हैं सुबह, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोई एक आध वृक्ष है कि 24 घंटा जो ऑक्सीजन देता है, जैसे पीपल का वृक्ष है वगैरह। तो इसीलिए बोलते हैं कि पीपल के वृक्ष के अलावा और किसी वृक्ष के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। तो सुबह ध्यान करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, आप फ्रेश रहेंगे, आपको अच्छा ध्यान लगेगा, एम्प्टी स्टमक रहेगा, खाली पेट रहेगा, तो सुबह ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको समय न मिलता हो तो आप जो खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद करें, सुबह करें, दोपहर में करें, शाम को करें, जब मिले तब आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन हमारा सहज ध्यान जो है ऐसा है कि आप खाना खा लो और तो भी धुन करके ध्यान में बैठो तो ध्यान लग जाएगा। लेकिन आपको खबर किसे पड़े कि खाने के बाद का जो घेन नशा है वो चढ़ रहा है कि ध्यान का नशा चढ़ रहा है। इसलिए खाने के पहले करो तो अच्छा है, लेकिन कभी भी करें ध्यान लगता है। क्या मैं इसका अर्थ ये मानूं कि धुन का करना अत्यावश्यक है? ध्यान में बैठने के पहले धुन अत्यावश्यक है। जब सिद्ध संत महापुरुष जब बोल देते हैं कि ऐसा करके बैठना तो करना चाहिए। जब आपको सोना आवश्यक है, खाना आवश्यक है, पीना आवश्यक है, तो ध्यान करना भी आवश्यक है। आप 24 घंटे में 5-6 घंटा सोते हैं तो शरीर रिलैक्स हो जाता है और मानसिक अस्वस्थता जो है सोने से नहीं जाती है, वो ध्यान से जाती है। तो ध्यान करने से मानसिक स्वस्थता आ जाती है। तो जिस तरह से खाना आवश्यक है, आपका सोना आवश्यक है, इस तरह से मेडिटेशन भी आवश्यक है। अगर आपको ज्ञान हो, समझ हो तो करना चाहिए। एक ध्यानी अगर रोज ध्यान करता है तो उसके सारे काम व्यवस्थित होते हैं और बड़ा खुश खुश रहता है। अब मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी मानसिक तनाव आता है, बहनों को
प्रॉब्लम होता है, कभी हार्मोन्स में परिवर्तन आता है, उसमें चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आती है, अस्वस्थता मानसिक रहती है, कोई लोग धंधा व्यापार में अस्त व्यस्त रहते हैं, वो सब में फायदा करता है। मतलब इतना सूक्ष्म तत्व है कि आपके अंदर घुस करके और आपके मन के अंदर जो सूक्ष्म विचार दौड़ते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वो सबको सहज में दूर करते रहता है। एक कवच सा बन करके खड़ा रहता है, आपको कुछ स्पर्श नहीं होता। अभी आपने धुन कराने के पहले ओम शब्द का उच्चारण किया था, तो ये जरा कृपया करके बताएं कि इस ओम के उच्चारण से शरीर में क्या होता है। इस मंत्र में तो हरिओम तत्सत सिद्धों ने दिया है, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। कि वेद में भी कभी हम बोल रहे हरि ही ओम मा सहस्रसी रेखा पुरुख, तो हमने देखा है कि हरि शब्द से वेद का उच्चार शुरू होता है कहीं कहीं मंत्रों में। तो ओम जो है अखिल ब्रह्मांड का स्वरूप है। ओम के विषय में जितना भी बोला जा कमती है, लेकिन ओम जो है इसमें इतना पावर है कि कहीं कहीं महापुरुष लोग बोलते हैं कि एकला ओम का जाप किसी गृहस्थाश्रमी को, व्यवसायी को नहीं करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि क्यों, सन्यासियों का कोई इजारा है इसमें, विद्वानों के लिए कहीं रजिस्टर है, हम क्यों ना करें। करिए आप, लेकिन खाली ओम का जाप करेंगे तो उसकी शक्ति आपके अंदर काम करेगी। तो खाली ओम में क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सारा जगत मिथ्या है, मात्र ब्रह्म ही एक सत्य है, ये सब बेकार है। ऐसे बहुत जप करने के बाद लगेगा कि ये धंधा भी बेकार है, क्यों करना, थोड़े से खाने के लिए इसे बैठकर जप करो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। ये घर भी क्यों बनाना, बच्चों के पीछे क्यों पढ़ना, धंधा में भी क्यों मन लगाना, ऐसे होने लगेगा। तो होते होते आपको लगेगा कि अब संन्यास ले लूँ, जंगल में चला जाऊं, तो घर में डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। आपको खबर नहीं पड़ेगा कि सब एक बाजू करना भी चाहिए, अंदर के विचार बोलेगा नहीं करना चाहिए। इसलिए खाली ओम सन्यासी लोग करते हैं तो उनको जगत में कहीं जाने का मन नहीं करता है, और फिर मस्ती में मस्त रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो ओम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको से ओम का जो प्रभाव है, जो उसकी शक्ति है, वही मात्र नहीं चाहिए। इसलिए ओम में बड़ी शक्ति है। किसी भी मंत्र के आगे ओम लगाकर हम बोलते हैं, लास्ट में भी ओम लगाते हैं, कहीं कहीं तो मंत्र के बीच में भी ओम देते हैं। तो ओम जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है, शक्ति है, सभी मंत्रों को प्रकाशित करता है, वो शक्ति भरता है। तो ओम तो होना ही चाहिए, लेकिन खाली ओम का जाप सन्यासियों के लिए है। कुछ इसी ध्यान के दौरान विचार बहुत उठते हैं, तो उन विचारों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ये मना ही चंचल कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, सभी शास्त्रों में ये प्रश्न भरा है, और सभी ऋषियों महर्षियों से लोगों ने यही पूछा है कि मन भागता है, क्या करें क्या करें। तो इसी प्रकार से मैं भी आपको जवाब दूं तो आपका समाधान नहीं होगा। शास्त्रों में जवाब बहुत दिया गया है और उसमें रास्ता भी बताया गया है, लेकिन ये भी बताया गया कि अमुक जगह गुरु गम्य है, सिद्ध पुरुष से, कोई महापुरुष से मिलो। तो विचार तो आपको आएंगे ही, दौड़ेंगे ही, परेशान करेंगे ही, लेकिन हरिओम तस्य जय गुरुदत्त करके ध्यान में आप जो बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार आपको परेशान नहीं करेंगे, वो दूर रहेंगे। और वो आपको इतना ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से जो है वो वही मुक्ति है। ज्ञान ही जो है सुख और शांति का स्वरूप है। परम शांति ज्ञान ओम ज्ञान ही है। इसलिए अज्ञानता है, वही दुख है, परेशानी है, डिप्रेशन है। तो हरिओम तत्सत शुद्ध ज्ञान प्रकाशित करके अज्ञान को दूर करता है। इसलिए जितने विचार हैं उनको हटाएगा अपने आप। ये करके बैठेंगे तो आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपका नाभि के नीचे कभी ऊंचा नीचा होने लगेगा, अपने आप होगा। कभी नाभि के नीचे गर्मी लगेगी, कभी बर्फ जैसे ठंडी लगेगी, कभी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ चढ़ रहा है ऐसा लगेगा, कभी आज्ञा चक्र में कोई कीड़ी फिर रही है, खंजोर आ रहा है ऐसा लगेगा, कभी आपको कोई आंख दिखाई पड़ेगी, आंख आती है चली जाती है, कभी एक आंख देखेगी, कभी दो आंख दिखेगी। ये सब ध्यान में होता है।
कभी सांप दिखेगा, कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, कभी अलग अलग कलर दिखेंगे, वो भी साधना में चक्रों का प्रतीक, प्रकृति का कलर है वो। और कभी कभी आपके गुरु महाराज, आपके भगवान दिखेंगे, और कभी कुछ दिखेगा नहीं, मात्र शांति लगेगी। तो ये सहज ध्यान जो है, ये जब आप करेंगे तो जा करके आपके अंदर के सारे तत्वों को, विचारों को, कितने 2-3 जन्म के आगे के पीछे के विचारों को एनालाइज करेगा, वो देखेगा और उसमें से निकाल करके सारी वस्तुओं को आपको देगा, कुछ इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और बाद में जो है साची दिशा परम शांति की तरफ ले जाएगा। कितने आपके विचार अंदर दबे पड़े हैं, कितने जन्म के, सब शुद्ध करेगा और सबकी इच्छा की पूर्ति करके आपको लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। इस ध्यान, सहज ध्यान से इतना लाभ है कि आप लोगों को इसके विषय में ज्यादा जानकारी हो तो सहज ध्यान जो पुस्तक है, पथ प्रदीपिका है, उसमें मैंने लिखा है, उसको पढ़िए। और कुछ समझ में न आवे तो पत्र व्यवहार करके पूछिए। अगर मैं न मिलूं तो ध्यान में बैठ करके और प्रश्न करिए कि हमका इसका समाधान हो। तो गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम से शस्त्र छिन्न संशय, अंदर ही अंदर आपको जवाब मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन सहज योग में शरीर का हिलना डुलना, आगे पीछे जाना, कभी उछल कूद होना, ये सब क्रिया हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कर तो दे रहे, अपने आप हो रहा है। माताओं बहनों को खास समझाइएगा कि उनको कभी अपने आप भस्त्रिका करने की प्रेरणा होती है तो अपने आप प्रेरणा होगी, यहाँ श्वास आएगा, दबान होगा, इसका मतलब श्वास लो छोड़ो करो। यहाँ दबान इसलिए आता है कि जल्दी यदि सांस लो तो हम घबरा जाते हैं कि हमको हाई बीपी हो गया, डॉक्टर को बुला लेते हैं, ज्ञान नहीं है इसलिए। तो बहनों को कभी शरीर में हिलन चलन हो, कभी इसी कपाल भस्त्रिका हो, अपने आप रोना हंसना आवे तो समझना कि उनके ऊपर कृपा बरस रही है। ये नहीं समझना कि काली माँ आ गई, न दुर्गा माँ आ गई, न भुवनेश्वर खोड़ियार माँ आ गई। अब तो कुछ लोग नहीं है तो अज्ञानी लोग माँ मान करके उसको अगरबत्ती करने लगते हैं, तो वो माँ जो है गलत रास्ते चढ़ जाती है, फिर भुआ में सब भुई बना देते हैं लोग। इसलिए ये सब न हो, इसलिए खास ध्यान रखना। सहज योग में शक्ति की जागृति और उसका ऊर्ध्वगमन होता है। सहज योग जो है दत्तात्रेय महाराज जी से सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद हो, इसलिए होता है। तो हमको तो ये बताया गया कि हरिओम तस्से जय गुरुदत्त, आप बुलाकर ध्यान कराओगे, अपने आप ध्यान लगेगा। तो आप लोग खुद करके देख लें, होता हो तो सारे विश्व को बताना चाहिए। इसमें कोई पंथ खड़ा नहीं करना है, कोई नई बाउंड्री बनाना नहीं है, किसी को चेला नहीं बनाना है, और किसी संप्रदाय को मिटाना भी नहीं है। आप जहाँ रहें वहीं रहें, जिस संप्रदाय में है वहीं रहें, जो गुरु है उसी को माने, अपने मंत्र को भी रखें, लेकिन ये बैठ करके आप ध्यान करें। अगर आपको ध्यान लगता हो तो हर्जा क्या है? ये ध्यान करने से आपके भगवान दिखते हैं, कृष्ण और राम, शिव, महावीर, भगवान बुद्ध, तो आपको करने में क्या हर्जा है? कुछ बदलता नहीं है इसमें। इसलिए अगर कोई नई टेक्नोलॉजी बाहर पड़ती हो तो भी अपना लेना चाहिए। आज का विज्ञान आगे बढ़ रहा है, सब जहां बोलते हैं वही टीवी में दिखता है। तो हमारी सरकार जो है आजकल इस कलयुग में डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा मंत्र दे दिया कि सारे विश्व में कोई भी ये मंत्र करेगा उसको घरे बैठा ध्यान लगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ समझने की जरूरत नहीं है, घरे बैठा ध्यान करो ना। कहाँ भटक रहे हो आप लोग? जहाँ भी जाते हो आपको मानसिक शांति तो नहीं मिलती है, इससे शांति मिलती हो तो बहुत अच्छा, और आप लाभ लो। न समझ में आओ तो मेरे से पूछो, तो कभी आप लोग इसका टेस्ट करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ एक जो संकल्प लेना चाहिए इस बारे में कुछ बातें बताए तो अच्छा है कि ध्यान करने से पूर्व कोई संकल्प लेने की आवश्यकता। अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से शरीर की शुद्धि होती है, विचार की शुद्धि होती है और सब अच्छा होता है। तो इसमें संकल्प तो करना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो हमको कहाँ जाना है, हमको क्या करना है। तो दैत्यों और राक्षसों ने भी
निर्विचार ध्यान, निर्विकल्प समाधि किया है, ध्यान में बैठकर मानसिक जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमको शंकर भगवान का दर्शन करना है, हमको ब्रह्मा जी का दर्शन करना है, हमको विष्णु का दर्शन करना है, जगदम्बा को खुश करना है। और करके फिर वरदान मांगा कि हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि देवों पर विजय प्राप्त करूं, हमको कोई मार नहीं सके, हम अजर रहें, अमर रहें, सबको अपने बस में करें। ये संकल्प किया उन लोगों ने। तो ये संकल्प भगवान आकर के प्रत्यक्ष दर्शन दिया, आशीर्वाद दिए। तो भगवान का दर्शन पाकर भी वो आसुरी तत्व के लोग कुछ नहीं पा सके। तो मेरा कहना है कि भगवान का दर्शन भी इतना महत्व का नहीं है कि जब आपको ज्ञान न हो। ज्ञान हो और आपको समझ में आए कि भगवान है, सदगुरु हैं, इनसे मांगना क्या चाहिए। आत्मज्ञान मांगो, अपने स्वरूप का बोध मांगो, आप खुद आत्मज्ञानी बनो और दूसरों को आत्मज्ञानी बनाओ। सबको मानसिक शांति मिले, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वत। ये भावना आपके अंदर है तो आप बड़े अच्छे भगवान के स्वरूप हो। तो संकल्प तो करना चाहिए कि हम किस लिए ध्यान कर रहे हैं, हमारा हेतु क्या है। इसलिए अगर संकल्प करके कि हमको इतनी शक्ति चाहिए कि हम अपना खुद कल्याण करें और अपने दूसरे के लिए भी हम हित करें, मंगल करें, तो उसके अंदर ज़्यादा शक्ति बढ़ती है, उसको भगवान ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, खुश रहता है। और आप मात्र अपने लिए मांगेंगे तो आपको माप में दिया जाएगा। अगर सारे सृष्टि के लिए सबकी भला करना चाहेंगे तो बहुत शक्ति दी जाएगी, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो। इसलिए भगवान देखता है कि बड़ा उदार है, तो करुणा, दया, उदारता, त्याग ये होना ही चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान में ये संकल्प करना चाहिए। ध्यान में यही ज्ञान होता है कि मैं तत्व गुणों प्रकृति द्वंद्व से पर आत्मा हूँ। आत्मा के बाद आप परमात्मा बनते हो और उसी अखंड विराट स्वरूप में आप विलीन होने लगते हो, चाहे आप साकार उपासक हो कि निराकार उपासक हो। संकल्प आपका निष्काम, निर्विकार, कल्याणकारी, विश्व के हित के लिए होना चाहिए। इसलिए संकल्प में जितना ऊंचा विचार होगा उतना ही अच्छा होगा। मैंने तो तपस्या किया, साधना किया, तो हमारे पीछे तो शायद कोई सदगुरु शक्ति होगी, कुछ भी कराई, तो मैंने तो सारे विश्व को शांति मिले यही मांगा है। आप विश्व में बसते हुए सारे मानवी, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी हो, सब लोग का कल्याण हो, सबको ईश्वर मानसिक शांति दे, सबके विचार शुद्ध हों, सब लोग आप परस्पर भेदभाव भूल करके प्रेम से रहें, आत्मीयता रखें। मेरा यही विचार रहा है, वही आपको बांट रहा हूँ। आप लोग करेंगे तो सारे पोल्यूशन हटता जाएगा और आपस में वैर विरोध जो है वो हट जाएगा, प्रेम संपादन होगा और ज्ञान बढ़ेगा तो रागत द्वेष भी मिट जाएगा और सारे दर्द दुख भी मिट जाएंगे। तो कितना मानवी बदल जाएगा। लेकिन ये करना भी सरल नहीं है, यहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है। रोज सुनो फिर भी कोई आता नहीं है, मुफ्त में दो तो भी नहीं लेना चाहता है, इसलिए बहुत देर लगती है। लेकिन अपना प्रयास चालू रखो, कोई अपेक्षा रहित सबका भला और कल्याण करना बड़ा अच्छा है। तो चंद्रकांत जी ने पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया, अग्रवाल जी ने पूछा उसका भी जवाब दिया, और महेश भाई हैं कि पाँव जी हैं कि आप सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग पूछ रहे हैं, तो सबके हित के लिए आप पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे जो प्रेरणा हो रही है, अनुभव है, वो मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रत्येक मानवी का फर्ज है कि जन्म ले करके और सबके लिए कुछ करे। तो मैं भी जन्मा हूँ किसी माँ के पिता के प्रेरणा से, माँ के गर्भ से, तो मैं सोचा कि सारे विश्व को कुछ क्यों न दिया जाए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो कुछ मांग रखा है वो आप तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैं दे करके मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। ईश्वर ने से मांगा रहा कि सब हमारे बच्चे हैं, सब मेरे परिवार है, सब मेरे हैं, तो आपके लिए वस्तु जो मांगी है आप तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए आप तक पहुंचाकर मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ। अब आप लोग जो है इसको अन्य भाइयों, माताओं, बहनों तक पहुँचावें, उनका भी भला कल्याण हो तो और अच्छा रहेगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ और रहूँगा, और अभी भी।
Bapu stands next to God, yet he is so entirely human. He has nurtured this ashram like his heart. Devotees and seekers come here from distant lands. They come here to pray, meditate, and realize the great spiritual power. And Bapu is the custodian of that power. He gives it to all whose prayers have been valid. In the middle of this life of divine ecstasy and Spartan asceticism, he remains an uncommonly simple man. A man with a rare gift of love and compassion. Swami Punitacharya Ji, the chosen one of Guru Datta.